everyone. Welcome to lecture number 31. So in lecture number 31, let us begin with question number 1. Question number 1, it says the number of parallelograms that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 4 parallel lines. So it's a repeat question. वहां पे पूछा था rectangles, यहाँ पे पूछ रहा है parallelograms. 4 parallelograms, 4 parallel lines forms a set. Another set is this one, 4 parallel lines, both are intersecting with each other. Now we need to find how many parallelograms can be formed. So the answer would be you have to pick any two from this red, any two from the blue. Clear? So picking any two from the red will be 4c2. The work is not completed yet. We need to multiply them. Picking the 4c2, any two out of the 4 blue ones. So it will be 4c2 into 4c2. 4c2 will be how much? 4 into 3 by 2, yani 6. 6 ka square, that is 36. So the answer is 36. Right? Got it? So it's an easy question. Let us proceed to the next question. Question number 2. A typical PNC type question where we're gonna find the number of solution. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, how many triplets are there that satisfy the equation x plus y plus z equals to 6, where x, y, z are natural numbers. This is the most important part, where x, y, z are natural numbers. देखो क्वेश्चन दो तरह का हो सकता है यहाँ पे. One variety will be x plus y plus z equals to 6. One variety will be x plus y plus z equals to 6. Now you'll be thinking, sir, the same thing. X plus y plus z equals to 6, x plus y plus z equals to 6. No, the conditional part is very important. अगर मैं यहाँ पे बता दूं x, y, z all can be greater than equals to 0, that means x can take value 0 as well. मतलब एक केस ऐसा भी बन सकता है 0, 0, 6. यहाँ पे क्या बताऊंगा कि x, y, z आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब x कैनॉट टेक वैल्यू 0. यहां पे ये जो 0, 0, 6 वाला केस ये नहीं बनेगा, या 0, 5, 1 वाला केस नहीं बनेगा. क्यों? बिकॉज इट इज नॉट अलाउड. यहाँ पे जो पैरामीटर्स है, द कंस्ट्रेंट्स, वी कॉल इट एज अ कंस्ट्रेंट्स, these variables are restricted here. You cannot take value as 0. Got it? It has to be greater than equals to 1. यहां पे और एक केस भी हो सकता है. केस क्या है? केस ये भी बन सकता है एक्स वाई रेस्ट्रिक्टेड है, जेड फ्री है. देख रहे हो, एक्स वाई रेस्ट्रिक्टेड है, यानी दो वेरिएबल्स आर रेस्ट्रिक्टेड, वन इज फ्री लाइक दिस वन. और एक केस ऐसा बन सकता है एक्स इज रेस्ट्रिक्टेड, वाई जेड फ्री. गॉट इट? तो यहां पे आपका सोल्यूशन क्या होगा? दो केसेस है. फर्स्ट वाला केस में उसका फॉर्मूला एक है, इसको याद रखना है आपको. वो व्हाट इज द फॉर्मूला? n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन. यहां पे भी वही होगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, लेकिन यहां पे एक चीज सब्ट्रैक्ट होगा, वो है k. व्हाट इज दिस k? कितने वेरिएबल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है. k मीन्स ऑन हाउ मेनी वेरिएबल्स restriction is imposed और इज एप्लीकेबल. इसका यह मतलब है अगर आपके पास कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, 0 अलाउड है, तो सीधा आपका आंसर होगा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन. n क्या है, r क्या है, सी आर माइनस वन क्या है. n यहां पे कितना है? 6, मतलब दिस साइड RHS वाला पार्ट 6 है. r कितना है, कितने वेरिएबल्स है, दैट इज 3, x y z माइनस वन सी 3 माइनस वन. सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 प्लस 3 इज 9, 9 माइनस 1 इज 8c2. टोटल 8c2 केसेस. ओबियस सी बात है, अगर 0 अलाउड नहीं है तो उससे कम रिजल्ट यहाँ पे आएंगे. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा? n कितना है? n इज 6. r कितना है, कितने वेरिएबल से? 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1. कितने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है? 3 के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, अगेन माइनस 3. So what will be your answer? This will be equals to 3 3 getting cancelled, 5c2.
5c2 का वैल्यू कितना है? 5 into 4/2. 5 into 4 is 20/2. Your answer would be 10. Clear? Got it? Let us proceed to the next question. That is question number 3. Do note these formulas. In question number 3, we have how many 5-digit prime numbers can be obtained by using all the digits 1, 2, 3, 4, 5. Let us write a number 1, 2, 3, 4, 5. अब जो भी अरेंजमेंट करोगे उसमें 1, 2, 3, 4, 5 रहेगा या नहीं रहेगा? ओबियस सी बात है, 5 डिजिट नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 को यूज करना है, कहीं पे भी कोई भी नंबर लिख लो, सारे नंबर्स आएंगे ही आएंगे। एक चीज यहाँ पे ट्रिक क्या है, ये ट्रिक आपको समझना है कि प्राइम नंबर पूछा है, आप ढूंढ नहीं पाओगे प्राइम नंबर, तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगा। वो क्या है, इसको सम करो। जब आप इसको सम करोगे, इसका सम आएगा 5 into 6/2 यानी 15। इस सारे नंबर्स का सम आएगा 15। अगर सारे नंबर्स का सम है 15, आप कोई भी नंबर लिखो उसका सम तो 15 ही आएगा ना, सारे डिजिट्स का सम। अगर सारे डिजिट्स का सम 15 है तो वो 3 से ओबियसली डिविजिबल होगा। अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या वो प्राइम नंबर बनेगा? नहीं। सो हाउ मेनी नंबर्स वुड बी देयर? 0। एज सिंपल एज इट इज। क्लियर? गॉट इट? सो ये ट्रिक्स को समझना है, कभी आपको प्राइम नंबर पूछेगा एक बार ऐड कर लो, अगर वो डिविजिबल बाय 3 हो रहा है तो game over. It is divisible by 3. How can you write a prime number? Not possible. So your answer would be 0. Clear? Let us proceed to the next question. These are easy questions. Question number 4. How many integers are there between 1 and 100 which are 4 as a digit but are not divisible by 4? 4 as a digit क्या होगा? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। यहाँ पे एक लाइन आएगा 14, 24, 34, 54, 64, 74, 84, 94। गॉट इट? अभी आपको एलिमिनेट करना है कौन कौन 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है हटाओ, 4 से डिविजिबल है हटाओ, 4 से डिविजिबल है हटाओ। ठीक है, अभी यहाँ पे कौन कौन 4 से डिविजिबल है? 44 है मतलब 84 होगा। गॉट इट? सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर नाउ? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, एक 4, और यहाँ पे 3, एक 4। तो टोटल यहाँ पे कितने हुए? 3 + 3 6 1 7, और यहाँ पे 7। सो टोटल कितने हुए? कुछ मिस हो गया क्या? जस्ट अ मिनट। 24 इज ऑल्सो डिविजिबल। हाँ, 24 डिविजिबल, 44 डिविजिबल, 64 इज ऑल्सो डिविजिबल। माई बैड। तो टोटल हाउ मेनी? एक गलती हो गया छोटा सा, इसको चेक कर लो। 40 लाइन में 41 नॉट डिविजिबल, 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 टोटल कितने हुए? 7। और ये वाले लाइन पे 14, 34, 54, 74, 94, तो टोटल 5। तो टोटल योर आंसर वुड बी 12। गॉट इट? क्लियर? इजी? बेस्ट वे टू फाइंड द आंसर। नो नीड टू यूज एनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जस्ट लिख लो, हो जाएगा आंसर। Proceed to the next question. This will be question number 5. How many 5-letter words that can be with or without meaning formed using all the letters of the word Delhi such that restriction आ गया क्या? Each word has to start with D and end with I. इस तीनों को छोड़ दो, बाकी 3 पोजीशन है, 3 पोजीशन को आपको अरेंज करना है। कितने वेज में अरेंज करोगे? 3 फैक्टोरियल। सो टोटल आंसर वुड बी 6। क्लियर? टोटल आंसर वुड बी 6। बिगिंस विथ डी, एंड्स विथ आई, रेस्ट रिमेनिंग पोजीशन। ये तो टाइड हो गया ना, ये 1-1 हो गया। यहाँ पे 3 केसेस, यहाँ पे 2 केसेस, और यहाँ पे 1 केस। टोटल मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 6, और एल्स यू कैन अप्लाई 3 फैक्टोरियल लॉजिक। क्लियर? गॉट इट? लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6. द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड सर्कल इज 2। एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, इंटरसेक्ट अगर होगा 2 पॉइंट्स, करेक्ट। Maximum number of points of intersection of a square and a circle is 8. 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2, टोटल 8। इजी? सो बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच आर करेक्ट?
Answer will be both 1 and 2. School level diagrams. Clear? Coming to question number 7. Integers are listed from 700 to 1000. How many integers is the sum of the digits 10? Easy question. अगर मैं एक इंटीजर ऐसा लिखूंगा जो 7 से शुरू हो रहा है, 700 टू 1000 के बीच में लिखना है ना, अगर 7 से शुरू करूंगा, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ए और बी. यू हैव टू राइट ए प्लस बी का सम एज 3. वही पूछा है ना, सम ऑफ द डिजिट इज 10. लिख सकते हो या नहीं? पहले पोजीशन में 0 डालो, 0 डालोगे तो 3 आएगा एक केस, 1 डालो 2 आएगा एक केस, 2 डालो 1 आएगा एक केस, 3 डालो 0 आएगा एक केस, खत्म. 4 केसेस. प्लस 8 से अगर शुरू हो रहा है, ए बी, ए प्लस बी आपको चाहिए 2. पहले 0 डालो 2 आएगा, फिर 1 डालो 1 आएगा, फिर 2 डालो 0 आएगा. 3 केसेस, 4 प्लस 3. फिर 9 का केस लो, ए और बी, ए प्लस बी हैज टू बी 1. तो क्या होगा, 0 डालो 1 आएगा, 1 डालो 0 आएगा. टोटल कितने केसेस? 2 केसेस. 4 प्लस 3 प्लस 2, दैट इज 9. Got it? Easy question. Clear? So with this, we come to an end of lecture 31. We will see you again in the next lecture. Till then, have a great day. Bye bye. Take care, everyone. Jai Hind.